Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Definite integral. We can evaluate definite integral as a limit of a sum by using the concept of area under the curve. Another method to evaluate the definite integral is fundamental theorem of calculus. Both these concepts will be discussed in this video lecture. Before that, we know that integral calculus mainly divides into two branches, that is indefinite integral and definite integrals. Now, what is indefinite integral? In short terms, indefinite integral is a special type of antiderivative. Before to discuss the indefinite integral, we briefly discussed antiderivative. Let's say we have a function y is equal to f of x. This is a function, a continuous function. Now we are interested to find out the antiderivative of this function. So the antiderivative of this function is a function from his derivative you get this small f of x. So this capital F of x is said to be antiderivative of small f of x if the derivative of this capital F of x equal to small f of x. So then this function is called the antiderivative of the given function. For example, if I consider f of x is equal to x square, so how I can find the antiderivative? Antiderivative of f of x. That antiderivative of f of x is denoted by capital F of x, and that will be a function which differentiated and gives x square. अगर हम इस f of x को डिफ्रेंशिएट कर लें और हमें x स्क्वायर मिले तो वो हमारे पास क्या है? वो है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3. When you take the derivative of this function, so that derivative is equal to that derivative will be equal to x square by using the power rule. So you see that the derivative of this function is equal to small f of x. So that's why this capital F of x is called antiderivative of this small f of x. Now, antiderivatives are not unique. For a single function, we have infinite number of antiderivatives, because you clearly see that this function is also antiderivative of this x square, because from the derivative of this you can get the small f of x. So from here we conclude that antiderivatives are infinite in numbers. So you see, capital F of x is antiderivative of small f of x if dash of x is equal to small f of x. Now, as I told you that antiderivatives are not unique. There are infinite number of antiderivatives for a single functions. So in general, if you write a general constant with the antiderivative, so f of x plus c, this expression is said to be indefinite integral of the small f of x if this capital F of x is antiderivative of the small f of x. As you clearly see that this capital F of x is antiderivative of this, because f dash of x is equal to f of x. So this expression antiderivative plus arbitrary constant is said to be indefinite integral of the given function small f of x. Symbolically,
indefinite integrals are denoted by this dx. So that will be equal to capital F of x plus c f small f of x is equal to the derivative of the capital F of x. So you clearly see that this f of x is antiderivative of this function. So when you add c with that antiderivative, so that become indefinite integral. In this indefinite integral, this sign is called integral sign. This sign is called integral sign. This function is called integrand, and dx sorry dx this dx indicates that you are integrating the function with respect to x, because the given function is dependent on x. So this is all about the indefinite integral. Okay, you clearly see that in case of the antiderivative or indefinite integral, we are not assuming any type of interval on which the function is defined. We can take a function that is continuous, so then you can integrate, mean you can find its indefinite integral or antiderivative. So you clearly say that that I started from a function which is only continuous. I'm not taking the domain on which this function is continuous. So you can discuss the idea of the indefinite integral. Okay, now moving towards the next portion, that is definite integral. How you can evaluate definite integrals? There are two methods to evaluate definite integrals. There are two basic methods to evaluate the definite integrals. Number one, you can evaluate the definite integral is limit of a sum. So one method is definite integral is limit of a sum, and the other method is fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus. So these two methods are used to evaluate the definite integrals. So now we are discussing these two methods, that how we can evaluate the definite integrals. In the first method, before to discuss these two methods, geometrically definite integrals are related to the area under a curve. So let's say I considering a function y is equal to f of x defined on a closed interval ab and continues on this interval. So if it is defined on this closed interval, so obviously it will be continuous. So this is a continuous function on closed interval ab. Okay, it is not necessary that the function must be differentiable. It only be a continuous. So this is a function. So let's say this is the, I'm drawing the graph. So this is x-axis, this is y-axis. This is a continuous function from a to b. So this area, the area under the curve,
starting from a to b is actually obtained from the definite integral of this function. So symbolically, definite integral is integral from a to b f of x dx. This is definite integral. This a is called lower limit, b is called upper limit. Now if we are evaluating this definite integral from a to b, so it means that the given function is continuous from a to b. So the area under this curve from a to b is the geometrical interpretation of this definite integral. अब हम ये एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? ये जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है a से b तक, ये हमें एरिया अंडर द कर्व देगा और ये कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कंटिन्यूस फंक्शन है. नाउ अगर आप इस एरिया को देख लें, सो दिस इज इन इर्रेगुलर शेप. यू क्लियरली सी दैट दिस इज इन इर्रेगुलर शेप. आप इसको देख लें, ये एक इर्रेगुलर शेप है. तो इस इर्रेगुलर शेप का मैं एरिया कैसे फाइंड करूँगा? इसकी फाइंड करने के लिए जो हमें डेफिनेट इंटीग्रल की इवैल्यूएशन से मिलता है, सो डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग इन दिस केस बट दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल. अब ये शेडेड एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगा? इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका गिवन इंटरवल है इसको आप n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लें और वो n सब इंटरवल, इस a को मैं x0 कहता हूँ, b को मैं xn कहता हूँ. तो वो n सब इंटरवल आपके पास ऐसे होंगे x0 x1 x1 x2 और सो ऑन अप टू xn-1 xn. तो ये आपके पास n सब इंटरवल हैं. ये n सब इंटरवल्स के बीच में हर एक में जो विड्थ होगा, हर एक में जो आपके पास गैप होगा, वो डेल्टा x से हम डिनोट करते हैं और वो सब के सब में हमने रखना है सेम. और ये डेल्टा x आपने कैलकुलेट करना है b माइनस a डिवाइड बाय n से. तो ये n सब इंटरवल हो गए. तो आप यहाँ देख लें, यहाँ पे n सब इंटरवल आपके पास ये हैं. ये आपके पास a, तो ये आपका लेट से x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया एंड सो ऑन, ये आपका xn-1 हो गया और ये आपका xn. तो ये आपके पास n सब इंटरवल में ये आपका जो डोमेन है वो डिवाइड हो गया. नाउ आप इंटरवल के राइट साइड पे, राइट एंड पॉइंट पे या लेफ्ट एंड पॉइंट पे, ये आप लोग की चॉइस है. आप अपने रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं राइट एंड पॉइंट्स, दीज आर द राइट एंड पॉइंट्स ऑफ योर सब इंटरवल्स, सो इसके ऊपर आप रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर लें. तो राइट एंड पॉइंट का जो जिसके ऊपर जो रेक्टेंगल का साइड आएगा वो एग्जैक्टली कर्व के ऊपर एंड करेगा. देखिए कर्व के ऊपर एंड. तो इस रेक्टेंगल का जो इसी तरह है, आपको अगर इसका हाइट चाहिए सो इसका हाइट आपके पास फंक्शन से मिलेगा और वो होगा एफ ऑफ x1, क्योंकि इसका राइट जो आखिरी पॉइंट है वो आपके पास फंक्शन की ग्राफ के ऊपर पड़ा है. सो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये रेक्टेंगल इसी तरह होगा और यहाँ आपके पास ये रेक्टेंगल इसी तरह होगा. तो ये आपके पास n सब रेक्टेंगल्स, यहाँ पे हर एक सब इंटरवल के ऊपर आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया. अब इन रेक्टेंगल्स का एरिया आप फाइंड कर लें. तो आपको पता है कि हर एक का विड्थ ये है और हाइट आपके पास फंक्शन से कैलकुलेट होगा. पहले वाले का हाइट आपके पास होगा एफ ऑफ x1, दूसरे का हाइट होगा एफ ऑफ x2 बिकॉज ये x2 इसका राइट एंड पॉइंट है, और आखिरी एंड सो ऑन, आखिरी का जो हाइट होगा वो होगा एफ ऑफ xn बिकॉज ये आपके पास राइट एंड पॉइंट के ऊपर ये बना हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया होगा, ये सारा एरिया अंडर द कर्व, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स. सो आपके पास ये पहले रेक्टेंगल का एरिया, ये दूसरे रेक्टेंगल का एरिया जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया एंड सो ऑन, ये आपके पास आखिरी रेक्टेंगल का एरिया. क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसी वजह से है कि ये एरिया यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है. ओके, नाउ अगर आप
राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास एक्चुअल एरिया से सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल वो ग्रेटर आएगा। लेकिन अगर आप ये करें कि आप एरिया आप लेफ्ट एंड पॉइंट्स के ऊपर, सब इंटरवल के लेफ्ट एंड पॉइंट्स के ऊपर, ये देखिए ये आपका फंक्शन था, ये आपके पास a, दिस इज़ b, सो दिस इज़ x नॉट, दिस इज़ एक्स एन, और आप ये करें दिस इज़ x1, दिस इज़ x2 एंड सो ऑन, दिस इज़ xn-1। तो अगर आप राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करें, राइट एंड पॉइंट, सो देखिए ये आपका एक्स नॉट सॉरी लेफ्ट एंड पॉइंट के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट करें तो आपके पास पहला रेक्टेंगल ऐसा आएगा, दूसरा रेक्टेंगल आपके पास ये होगा, आपके पास जो आखिरी रेक्टेंगल होगा वो आपके पास ये है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये आपके पास जो एरिया होगा वो अप्रोक्सीमेटेड एरिया अंडर द कर्व अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि पहले का फिर आपने अगर हाइट फाइंड करना है तो वो आपके पास राइट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट फंक्शन में पुट करके वो आपको मिलेगा। सो डेल्टा एक्स ये होगा एफ ऑफ एक्स वन और ये जाएगा डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स n-1। सही है, तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ अगर इस केस में देख लें, you are using the right end points of the sub intervals. Now if you use the left, तो इस केस में आपको ये यहाँ से जो मिलता है ये आपके पास ग्रेटर होगा एक्चुअल एरिया से, और ये एरिया जो आपको मिलेगा यहाँ से सम ऑफ दी एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल ये स्मॉलर होगा एक्चुअल एरिया से। तो अब इसको हमने एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सो इसके लिए आसान अल्फाज में हमने क्या करना है, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो अगर आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने जो सब इंटरवल्स बनाए हैं उनको आपने इंक्रीज करना है, और सब इंटरवल्स का तादाद जो है वो n से डिनोट होता है। तो आपने अगर एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना है तो n के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करना होगा। तो ये देखें इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आपके पास बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स में सबसे कॉमन कर रहा हूँ क्योंकि सारों में है, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन, ये जाएगा एफ ऑफ एक्स एन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n एफ ऑफ एक्स आई और इसके साथ डेल्टा एक्स आप यहाँ लिख लें। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। तो ये हमारे पास मीन यहाँ से आपको n के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई किया है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब आप इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपके पास जो एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व की तरफ आप मूव करोगे। आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, एफ आई कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये डिफाइन है ऑन द क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो ये इसका ग्राफ होगा, ये आप देख लें, दिस इज़ 4 2 0, 0 के ऊपर 0 देगा, 2 के ऊपर ये फंक्शन आपको 4 देगा। सो ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व है। अगर इसको आप डिवाइड कर लें, यहाँ पे आप डेल्टा एक्स को रख लें लेट से 1, सही है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके पास है 2, तो ये आपके पास डिनोट होगा डेल्टा एक्स आपका होगा b बाई ए डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से b आपके पास है 2, a आपके पास है 0, n आपके पास है 2, तो आपके पास 2/2 से 1 आ जाएगा। तो आप देख लें ये आपके पास 1। सो ये आपका एक सब इंटरवल है, ये दूसरा सब इंटरवल है। तो इस सब राइट एंड पॉइंट के ऊपर आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, और यहाँ दूसरे सब इंटरवल के राइट एंड पॉइंट पे आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया होगा, देखें ये आपका पहले रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा, पहले रेक्टेंगल का हाइट एफ ऑफ 1 होगा, और दूसरे रेक्टेंगल का हाइट क्या होगा, वो आपके पास एफ ऑफ 2 होगा। पहले रेक्टेंगल के हाइट के साथ आप डेल्टा एक्स मीन इसका वेट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पहले की ये आपके पास ये सारा एरिया हो जाएगा। फिर आपके पास
दूसरे रेक्टेंगल के हाइट के साथ आप उसका विड्थ मल्टीप्लाई कर लें तो ये सारा एरिया आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ दी अप्रोक्सीमेटेड एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे आपके पास इस अप्रोक्सीमेशन से ग्रेटर वैल्यू आएगी क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपके पास ज़्यादा आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन आप ले लें और इसमें आप क्या करें, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 0 और वही डेल्टा एक्स आप 1 रख लें। मीन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके पास 2 हैं तो ये आपके पास 1 होगा। लेकिन इस केस में मैं क्या करता हूँ, अगर आप राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर अब लेट से आप राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या फाइंड करना चाहते हैं, रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ का रेक्टेंगल तो बस एक पॉइंट ही होगा और यहाँ से रेक्टेंगल आपके पास इसी तरह कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये एरिया भी मिसिंग है और आपके पास ये एरिया भी मिसिंग है। तो यहाँ से आपके पास जो अप्रोक्सीमेटेड एरिया होगा वो 1 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस 1 टाइम्स एफ ऑफ 1 होगा। नाउ इन दिस केस आई एम यूजिंग द लेफ्ट एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल्स। ये आपके पास है राइट एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो ग्रेटर होगा एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व। एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व आपके पास ये है और यहाँ पे ये जगह ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व ये है और यहाँ पे ये जगह और ये जगह मिसिंग है तो ये आपके पास स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे इसको करने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके पास इंक्रीज होंगे, एन अप में 4 कर देता हूँ तो यहाँ डेल्टा एक्स आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो आप देख लें आपके पास जब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इंक्रीज होंगे तो उस केस में ये आपका 0, दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5। तो राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर मैं रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। नाउ राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर मैं रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख लें इस केस में आपके पास पहले का हाइट क्या होगा, पहले रेक्टेंगल का, ये आपका पहला रेक्टेंगल है, इसका हाइट होगा एफ ऑफ 0.5, दूसरे का हाइट होगा एफ ऑफ 1, तीसरे का हाइट होगा एफ ऑफ 0.15 एफ ऑफ 1.5 और आखिरी का हाइट होगा एफ ऑफ 2। तो इनके साथ आप 0.5 मल्टीप्लाई कर लें, 0.5 इसके साथ, 0.5 इसके साथ, 0.5 इसके साथ, 0.5 इसके साथ। सो दीज आर दी एरियाज ऑफ दी रेक्टेंगल्स रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 एंड 4। तो इन तमाम को अगर आप ऐड करते हैं तो यू गेट द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन ये एरिया अब इस एरिया से कम होगा यहाँ से जो आपको मिलता है, लेकिन फिर भी एक्चुअल एरिया से ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो आपके पास b इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं और उस केस में आपको जो एरिया अंडर द कर्व मिलता है वो आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द गिवन कर्व अंडर दैट फंक्शन। सो वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये लिमिट हम अप्लाई करते हैं और रिमेनिंग यहाँ जो है दैट इज़ नथिंग, ये जो मैं लिख रहा हूँ समेशन 1 to n एफ ऑफ एक्स आई डेल्टा एक्स। सो ये तो आपके पास सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हैं। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिमिट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पे अप्लाई हो रहा है। और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट ये लिमिट आपके पास अप्लाई हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, आपकी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के ऊपर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सब इंटरवल इंक्रीज होंगे उतने आपके पास एरिया आपकी एरिया एक्यूरेट की तरफ मूव करेगा जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व होता है। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ एक डिटेल से डिस्कस करूँगा। थैंक यू।